السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ ایف آئی اے نے کراچی ایئرپورٹ پر گدا گڑی کے لیے سعودی عرب جانے کی کوشش میں 2 ہندو خواتین کو گرفتار کر لیا۔ خواتین کی شناخت ایشا دیوی اور نیشو کماری کے نام سے ہوئی۔ ایشا دیوی کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل تھا اور وہ سعودی عرب میں گدا گری میں ملوث رہی ہے، جس پر اسے پہلے بھی سعودی عرب سے پولیس نے گرفتار کر کے پاکستان ڈیپورٹ کیا تھا۔ نیشو کماری سعودی عرب جانے کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہ کر سکی، جس پر دونوں خواتین کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی منتقل کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملے جاری ہیں، جس میں تازہ کارروائیوں میں مزید 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے اتوار کو غزہ سٹی کے 3 ہسپتالوں پر حملے کیے۔ جلم الوفا ہسپتال پر حملوں میں 7 فلسطینی شہید اور کئی افراد جھلس گئے۔ جمعہ کو کمال ادوان ہسپتال کو آگ لگانے کے بعد اسرائیلی فوج نے ہسپتال کے ڈائریکٹر اور عملے سمیت سینکڑوں افراد کو قید کر لیا تھا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق 14 ماہ سے جاری جنگ میں مجموعی طور پر 45,514 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو پراسٹیٹ انفیکشن کے باعث ہسپتال میں داخل ہیں۔ طبی ماہرین نے ان کی پراسٹیٹ نکالنے کی سرجری کا مشورہ دیا ہے، جو آج ہوگی۔ اس سرجری کی وجہ سے نیتن یاہو کو کئی دن ہسپتال رکھا جائے گا، جس کے باعث ان کے خلاف کرپشن کیس کی سماعت بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ نیتن یاہو نے ہمیشہ اپنے صحت مند ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن گزشتہ برس ڈاکٹروں نے انکشاف کیا کہ انہیں عارضہ قلب تھا، جس کے لیے پیس میکر لگایا گیا۔ نیتن یاہو کی غیر موجودگی میں وزیر انصاف یاریو لیون قائم مقام وزیر اعظم ہوگی۔ ملک میں موسم کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ مختلف شہروں میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ اسکردو میں برف باری کے باعث پارہ -13 ڈگری تک گر گیا اور استور کے بالائی علاقے منقطع ہو گئے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں سیاحوں کی آمد جاری ہے، جبکہ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی شدید سردی ہے۔ کوئٹہ اور زیارت میں درجہ حرارت -6 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں ہر سو دھند چھائی ہوئی ہے۔ چونیا کھوڑا کھو میں لیسکو ٹیم پر بجلی چوروں کا حملہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس ڈی او امجد اقبال نے بتایا کہ ملزم نے بجلی چوری کر کے لیسکو کو 1,55,000 روپے کا نقصان پہنچایا۔ نامزد ملزمان میں عابد شہزاد، علی کیسر اور 2 نامعلوم افراد شامل ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ایس ڈی او نے کہا کہ بجلی چور عوام کے مجرم ہیں اور انہیں کسی صورت میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ گجرانوالہ میں 7 دینی مدارس میں کمپیوٹر اور فنی تعلیم کا آغاز کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ ٹیفٹا اور مدارس کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد اور چیئرمین ٹیفٹا ساجد کھوکر نے تقریب میں شرکت کی۔ چیمبر آف کامرس نے مزید مراکز قائم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ علماء نے اقدام کو سراہا۔ منشن آباد میں زیر تعمیر روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی الٹنے سے 2 راہگیر شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا۔ حالت تشویشناک ہونے پر بھاول نگر ریفر کر دیا گیا۔ کانا ایل ڈی اے سوسائٹی میں کارروائی کے دوران بچوں کے ذریعے موٹر سائیکل چوری کرنے والا 4 رکنی گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ گروہ بچوں کے ذریعے ریکی کر کے واردات کرتا تھا۔ چوری شدہ 3 موٹر سائیکلیں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس موقع پر ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ نے بتایا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ وہاڑی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس کی 930 لیٹر کھیپ تلف کر دی۔ ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کو 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید نے شہریوں کو اشیاء خریدتے وقت ایکسپائری تاریخ چیک کرنے کی ہدایت کی اور ہیلپ لائن پر اطلاع دینے کی اپیل کی۔ چوچک پریس کلب کے سالانہ انتخابات مکمل ہو گئے۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں اصغر قادری کی رپورٹ۔ جی بالکل، چوچک پریس کلب کے سالانہ انتخابات برائے سال 2025 آج منعقد ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے فرائض اکاڑا کے نامور صحافیوں، جن میں رائے امداد، علی کھرل، تبسم صدر پریس کلب سدگرہ، راوی پریس کلب نول پلاٹ سے رائے خالد سرور کھرل اور میاں مزمل حسین جویا نے سر انجام دیے۔ اس موقع پر مقامی پولیس اسپیشل برانچ، سیکورٹی برانچ کے ساتھ ساتھ مقامی انتظامیہ اور سیاسی رہنماؤں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ منتخب ہونے والوں میں پریس کلب کے لیے اصغر قادری سرپرست اعلیٰ، حامد عطا رسول چیئرمین، ڈاکٹر محمد سعید سینئر وائس چیئرمین، میر سرور بشیر وائس چیئرمین،
मलिक सुहेल शरीफ भट्टी सदर, अली गोहर भट्टू सीनियर नायब सदर, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ नायब सदर, राय रिजवान इकबाल खरल जनरल सेक्रेटरी, राय इरफान इकबाल खरल फाइनेंस सेक्रेटरी, मोहम्मद आसिफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, महर आफ्ताब असलम सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और तौफीक अहमद भट्टी चेयरमैन मजलिस आमला मुंतखब हुए। ये बात खासी दिलचस्प रही कि साबका सदूर मलिक इजाज हुसैन भट्टी, मोहम्मद अमीन भट्टी और महर अला यार ने इस मरतबा किसी ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ने की बजाय बतौर मेंबर चूचक प्रेस क्लब के लिए काम करने को तरजीह दी। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि सदर सुहेल शरीफ भट्टी और राय रिजवान इकबाल खरल एक कांटेदार मुकाबले के बाद मुंतखब हुए, जबकि बाकी तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बाद अज़ां राना पेट्रोलियम की तरफ से पुरतकल्लफ दामत का एहतमाम किया गया। असगर कादरी, स्पेशल टीवी, चूचक। महकमा पुलिस मुख्तलिफ सरकारी महकमों के रेवेन्यू में रुकावट बन गया, जिसके बायस हुकूमती खजाने को रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मजीद तफसील देखते हैं चीफ रिपोर्टर सैयद सदीक रिजवी की रिपोर्ट। महकमा पुलिस को दी जाने वाली बेशुमार सहूलतें, जिनमें महकमाना तरक्कियां, मॉडल पुलिस स्टेशनों का क़याम, तनख्वाहों में इजाफा, अरबों का बजट, नई गाड़ियां और बेशुमार सहूलतों के बावजूद आम शहरी जो कि पुलिस की कारकर्दगी से नाला हैं, अब मुख्तलिफ सरकारी महकमे जिनमें लेस्को, सुई गैस और वासा शामिल हैं की नादिहंगान से रिकवरी में भी रुकावट बन गया है। पुलिस को जब मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से नादिहंगान से वसूली के लिए तकाज़ा भेजा जाता है तो मुतल्लिका थाना FIR दर्ज करने में टाल मटोल से काम लेता है। इस शख्स के खिलाफ दरखास्त आती है, उसको थाना में बुलाकर बताया जाता है तुम्हारे खिलाफ दरखास्त आई है, और FIR दर्ज नहीं करते और वही तौर पर से पैसे लेकर उसे छोड़ दिया जाता है, जिससे हुकूमत को रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सरकारी महकमों की जानिब से जब FIR का कहा जाता है तो हफ्ता 10 दिन में FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने की बजाय उसे FIR की कापी देकर मुबैना तौर पर उससे चंद हजार रुपए लेकर उसे अबूरी जमानत करवाने का कह देते हैं, जिससे महकमों की रिकवरी मुतासिर होती है और हुकूमत को रोजाना की बुनियादों पर करोड़ों रुपए का नुकसान भी होता है। जल्द FIR के अंदाज ले जाने वाले सरकारी मुलाजमीन से भी मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की जाती है। सरकारी महकमों के अफसरान ने नाम जाहिर न करने की यकीन दहानी पर बताया कि FIR दर्ज करने के लिए मुख्तलिफ बहानों से न सिर्फ रिश्वत तलब की जाती है, बल्कि ये भी कहा जाता है अगर महकमा कुछ रिलीफ दे तो हम रिकवरी भी करा देते हैं। अब देखना यह है कि IG पंजाब महकमा में मौजूद इन काली भेड़ों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं और महकमा पुलिस की नाअहली की वजह से जो हुकूमत को करोड़ों का नुकसान पहुंच रहा है, इस पर इन एहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। सैयद सदीक रिजवी, स्पेशल टीवी, लाहौर। दीना में ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर चाबी वाला अखरोट अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। ये अखरोट एक चाबी से खुलता है और जायके में पिस्ता, बादाम, काजू से भी बेहतर है। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर अखरोट कम कोलेस्ट्रोल के साथ ग़िज़ाइयत फराहम करता है। मौसम सरमा में दीना की ड्राई फ्रूट मार्केट में काजू, मूंगफली, बादाम, चरगोज़े और अखरोट की बहार आ चुकी है, जो बच्चे और बड़े शौक से खाते हैं। दीना शहर में ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर चाबी वाला अखरोट आ गया है, जो आजकल शहरियों के लिए खुसूसी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। चाबी वाला अखरोट जायके के एतबार से पिस्ता, बादाम और काजू से भी ज्यादा जायकेदार है। ये अखरोट एक चाबी से खुलता है। चाबी वाला अखरोट में प्रोटीन, विटामिन और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रखता है। मौसम सरमा के आगाज के साथ दीना की ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर काजू, मूंगफली, अखरोट, बादाम, चलगोजे और पिस्ता बादाम की बहार उतर आती है। अखरोट मौसम सरमा में इस्तेमाल होने वाले खुशक मेवाजात में खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर भी है। जी। पाकपतन गांव 46 EB में शादी की तकरीब पर हवाई फायरिंग और फाहश डांस करवाया गया। इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट से खौफो हिरास फैल गया। 2 रोज बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद DPO ने नोटिस लिया, जिस पर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से भारी मिकदार में जदीद असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अफसोसा खबर से आपको आगाह करते चले, शकरगढ़ कस्बा चक आमरू में 8 साला बच्चा तेल वाले कोहलू में आकर जा बहक हो गया। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई के बावजूद कमसिन बच्चे की जान न बचा सकी। पुलिस के मुताबिक बच्चे की हलाकत पट्टा में चादर फंसने से हुई। मजीद तफ्तीश जारी है।
लेस्को कोट ख्वाजा सैयद सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एसडीओ नोमान सदीक ने एक ट्यूबवेल से बिजली चोरी करते हुए कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर और तारें कब्जे में ले ली। मुल्जिम के खिलाफ एफआईआर और डिडक्शन बिल चार्ज करने की दरख्वास्त मुतलका थाने में जमा करवा दी गई। साहिवाल में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। हड़प्पा, बंगला, नाईवाला और मालन शाह चौक में अशिया खुरोनोश आवाम की पहुंच से दूर है। गोश्त, सब्जियां और फल मन मर्जी के रेट पर फरोख्त हो रहे हैं। इलाका वकीलों ने बताया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गायब है। देहातों में खुद साख्ता महंगाई बढ़ रही है। अवामी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। अहमदपुर सियाल में डीपीओ जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी से अवाम को क्या फ़ायदा हुआ, आइए देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंसाफ अवाम की दहलीज पर के नारा को अमली जामा पहनाने के लिए डीपीओ जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी ने म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल में खुली कचहरी लगाकर अवामी शिकायत सुनी और उनके अजाला के लिए पुलिस अफसरान को मौका पर अहकामात सादर किए। शिकायत पेश करने वालों में ज्यादातर तादाद खवातीन की थी। जिले ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरदार मोहम्मद आरिफ खान कश्मीरी ने भी डीपीओ की तवज्जो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की कमी, कोहर आलूद मौसम में पुलिस गश्त को बढ़ाने और पुलिस को मजीद मोटरसाइकिलें फराहम करने की जानिब मबजूल करवाई, जिस पर बिलाल इफ्तिखार कियानी ने तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। डीपीओ जंग बिलाल इफ्तिखार कियानी ने सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मजार मुबारक पर भी हाजिरी दी, फातिहा खानी की, मजार मुबारक के मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। खुली कचहरी थी अहमदपुर सियाल में, उस सिलसिले में मैं अहमदपुर सियाल आया था, तो वापसी में मैंने कहा कि यहाँ पे भी जो है कि एक तो हाजिरी भी हो जाएगी प्लस यहाँ की सिक्योरिटी के सिलसिले में, क्योंकि यहाँ पे गाए बगाए ऐसे जो है वो होते रहते हैं, इवेंट्स आते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो उसकी सिक्योरिटी के सिलसिले में, लोगों की फलाह बहबूद के सिलसिले में और यहाँ पे जो कैमरा जात लगे हुए हैं उसके सिलसिले में मैंने कहा मैं विजिट करूँ। डीपीओ जंग ने एसएचओ थाना गढ़ महाराजा राशिद इस्लाम को दरबार की सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत भी दी। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। सर्दियों में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरिया सतलुज की ताज़ा मछली की मांग में इजाफा हो गया, जो अपने मुनफरिद जायके और कुदरती लिज़्ज़त की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। मज़ीद तफसील बताएंगे हवेली लखा से सरफराज अहमद। जी सरफराज अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड सुलेमानकी के मुकाम पर। यहाँ पर दरियाए सतलुज की ताज़ा मछली मौजूद है। यहाँ पर मैं इस वक्त एक फिश पॉइंट पर मौजूद हूँ। दुकानदार से पूछते हैं उनके पास कौन कौन सी मछली यहाँ पर मौजूद है। जी सर जी, मेरे को काला रोहू होंदा है, शिंगारी होंदी, तरकंडा होंदा है, दरिया सतलुज का काला रोहू हर वक्त दस्तियाब है। तो जदों भी इंशाल्लाह लोगे दरिया सतलुज की मच्छी मिलेगी तुहानू। हर किस्म की मेरे को मच्छी है, तरकंडा भी है, रोहू भी है, शिंगारी भी है, मली भी है, सौल भी है, इनकी दरिया की मच्छी है। हर वक्त जदों भी लोगे इंशाल्लाह ताला ताज़ा मछली मिलेगी। जी बिल्कुल, दुकानदार का यही कहना है कि यहाँ पर हर वक्त ये ताज़ा मछली दरियाए सतलुज की हमारे पास मौजूद होती है। तो यहाँ पर दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं और सर्दियों में खासकर यहाँ पर रश बढ़ जाता है। जी बहुत शुक्रिया सरफराज अहमद ने हमें अपडेट किया। मजीद आपको बताते चले, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 1,74,031 मुलजिमान पकड़े गए। 1,62,608 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 45,310 गिरफ्तार हुए। 17,99,99,126 यूनिट्स की कीमत 6,81,76,80,469 रुपए चार्ज की गई। चूनी और छांगामांगा में शदीद धुंध के बायस हद निगाह कम हो गई। शहरियों को सफर में मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों पर फॉग लाइट्स लगाने और रफ्तार कम रखने की हिदायत की। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से घरों से बाहर न निकलने और सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने की अपील की है। छांगामांगा में अल अहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल ने अख्तर हॉस्पिटल में 7वीं फ्री आई कैंप लगाया। 661वीं कैंप में 1200 मरीजों का मुआयना किया गया। मुफ्त अद्वियात, ऐनक और मोतियां के ऑपरेशन किए गए। शहरियों ने ट्रस्ट की काविशों को सराहा। ओकाड़ा में 2024 की सालाना रिपोर्ट में पुलिस ने 609 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 20 करोड़ रुपए माल मसरूका बरामद किया। 1549 मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया। 24,277 लीटर शराब बरामद की गई।
5,741 اشتہاری ملزمان پکڑے گئے، 32,115 مقدمات درج ہوئے، 76,225 شہریوں نے خدمت پناکت سے فائدہ اٹھایا، جبکہ 3,820 افراد کو تحفظ فراہم کیا گیا۔ ٹنڈوالا یار میں سی آئی اے پولیس کے جعلی اہلکاروں کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں انکشاف ہوا کہ جعلی پولیس اہلکار پولیس کی وردی اور موبائل استعمال کر کے بھتہ وصولی میں ملوث تھے۔ اے ایس آئی کریم کالرو نے جعلی اہلکاروں کو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ فرار ہو گیا، تاہم پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ٹھٹہ میں سید امداد علی شاہ کے قریب گجو مقام پر وین اور رکشہ میں خوفناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 2 افراد جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے جاں بحق ہو گئے، جبکہ 10 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو نجی گاڑیوں کے ذریعے سول ہسپتال ٹھٹہ منتقل کر دیا گیا۔ نوشہر و فیروز میں دھند کے باعث وین اور ٹرالر میں تصادم سے 7 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے، جن میں 10 کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں کو مورو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایمرجنسی سہولت نہ ملنے پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ تمام افراد حیدرآباد سے شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ لاہور پولیس نے 2024 میں 6,611 سرچ آپریشن کیے، جن میں 2,04,000 گھروں اور 5,58,000 افراد کو چیک کیا گیا۔ 3,700 افراد کے خلاف کارروائیاں کی گئی، 870 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا گیا اور 616 اسلحہ، 492 منشیات کے مقدمات درج کیے گئے۔ سیکیورٹی انتظامات کے تحت 481 ہوٹل، 57 بس اڈے اور 18,682 دکانوں کو چیک کیا گیا۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔